crystal clear? Yes. Okay, chalo. Yes, good morning, good afternoon, all of you. So let us start with our today's lecture. So today we are going to start with a new topic. Okay, name of the topic is friction. Okay, name of the topic is friction. So what comes in your mind if I say about friction? Resistive force. Yes, whenever two bodies, okay, suppose this is one body, okay, and this is another body. So these two bodies, whenever it is rubbing against each other, okay, suppose it is moving in this direction, this body is moving in this direction, and there is some contact, okay, between these two bodies. There is some contact between these two bodies. So whenever these two bodies are rubbing against each other, okay, so there is some, there is a reaction force whenever it is rubbing. Okay, so whenever the surfaces are rubbing against each other, देखो यहाँ पे जो surface है, अगर ये direction में move होता है और this body is moving along this direction and there is a contact between these two, okay, यहाँ के दोनों के बीच में contact है, तो क्या हो रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, rubbing हो रहा है, तो due to that rubbing there is a friction, okay, between the surface. Now you will be thinking that what is this friction, okay, एंड फ्रिक्शन कितने टाइप का रहता है, देखो एक रहता है, फर्स्ट इज योर ड्राई फ्रिक्शन, ओके, वन इज योर ड्राई फ्रिक्शन एंड अनदर वन, ओके, इज कॉल्ड एज द फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, ओके। तो ड्राई फ्रिक्शन मतलब क्या, अभी सपोज जैसा कोई भी, अगर आप शू शू पहन के अगर वो अपने फ्लोर के ऊपर चलते हो, करेक्ट, if you wear your shoe and if you walk on the floor, so that, there is a friction involved. If there is no friction, you cannot walk on the floor, yes or no, do you agree this? So walking is the best example of dry friction, okay, whenever you walk, okay, wearing your shoes. So that is a best example for dry friction. For fluid friction, what is the best example, can you answer? For fluid friction, have you seen fluid friction anywhere? बोलो, फ्लूइड फ्रिक्शन कहाँ पे देखा आपने? सर हनी वगैरह Viscosity. फ्लो होता है तो तब। Okay, honey, whenever it is moving on the any wall or some, okay, that is, you can say. One more example you can give. Suppose now whenever you go on that water slide, ये आपका water slide रहता है ना जब भी, okay, so whenever you slide there on this water slide, correct, and whenever someone slides on this water slide, तो ये water slide के ऊपर आप देखोगे continuously water flow होते रहता है, yes or no? तो आप जब भी इसके ऊपर से स्लाइड कर रहे हो, तो तभी उस टाइम पे आपको वाटर जो है, दैट इज हेल्पिंग यू टू मूव ओवर दिस स्लाइड, ओके, सो दैट इज, यू कैन से इट इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, ओके, यस और नो, डू यू एग्री दिस? फिर एक और एग्जांपल है, जब भी हम लोग बेयरिंग्स यूज करते, देखो आपने बेयरिंग्स देखा रहेगा, बॉल बेयरिंग्स बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, बॉल बेयरिंग्स में, नाउ सपोज दिस इज अ बेयरिंग, ओके, ये अपना, आपको कोई भी आपका एक्टिवा वगैरह आप ओपन करोगे ना, तो उसके अंदर आपको बेयरिंग्स दिखेगा। तो बेयरिंग्स में कैसा रहता है मालूम है, ये ऐसा गोल गोल, ये देखो ऐसा बेयरिंग्स रहेगा इसके अंदर ऐसा, ठीक है, ऐसा बेयरिंग्स रहता है अंदर। तो ये रोल होता है ऐसा, अंदर वाला ये रोल होएगा, ऊपर वाला कांस्टेंट रहता है, ऊपर वाला पार्ट फिक्स रहता है इसमें, ठीक है। तो ये जो बेयरिंग्स है जब भी घूमता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स डालते हैं ताकि ये ना स्मूथली घूमे, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसके ऐसा रोल होके स्मूथली घूमे। सो देयर आल्सो फ्लूइड वी आर यूजिंग। सो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, whenever suppose there are two surfaces, so we use some oil or lubricant to reduce the friction, okay, so that is also, you can say that it is one of the best example of fluid friction, correct, yes or no? So dry friction, already I have told you what is fluid friction, that also we have discussed.
ओके। बैलेंस वाला नहीं समझा। बेयरिंग्स में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ऑयलिंग करते हैं ना, आपने देखा रहेगा, देखो आप जब भी कोई साइकिल के दुकान पे भी जाओगे या इस पे, तो चेन में ऑयलिंग करते देखो। ये आपने देखा नहीं कभी ऑयलिंग करते हुए कोई कर देखा है। मैकेनिक? हाँ, तो ऑयलिंग क्यों यस सर। करते हैं? वो फ्लूइड डालते हैं ना उसमें, ताकि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करे। यस और नो? जो यस सर। एक्सल और बेयरिंग के बीच में जो फ्रिक्शन होता है यहाँ पे, ओके, ये घूमेगा, देखो ये अंदर वाला पार्ट घूमेगा, ये वाला रोल होता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट डालते हैं ताकि ये स्मूथली रोटेट हो। समझे कि नहीं, ये वाला पार्ट। तो इसके वजह से उसको, वो जो पोर्शन हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। मतलब फ्लूइड हम लोग डाल रहे टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ओके, लुब्रिकेंट्स वी आर यूजिंग। तो ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, ओके, this dry friction, this dry friction is also called as Coulomb friction. Okay, इसको Coulomb friction भी बोलते हैं, ड्राई फ्रिक्शन को। ओके, Coulomb फ्रिक्शन। ओके, तो ड्राई फ्रिक्शन में जैसा मैंने बोला, देखो ये जो बेयरिंग्स है, ये जो बेयरिंग जो गोल गोल घूमेगा ना, जो रोल होता है बेयरिंग्स, ओके, तो वो हो गया आपका ड्राई फ्रिक्शन। लेकिन अगर हम लोग ने उसमें लुब्रिकेंट्स यूज किया, ओके, तो रिड्यूस द फ्रिक्शन, सो दैट कम्स अंडर द फ्लूइड फ्रिक्शन। आगे समझ में, जैसा वाटर स्लाइड मैंने बोला, जब भी आप वाटर स्लाइड पे स्लाइड करते हो, कभी आप वाटर किंगडम जाओ या कोई भी वाटर पार्क जाओ, ओके, तो वहां पे बहुत सारे वाटर स्लाइड्स रहते हैं। तो उसके ऊपर जब भी आप स्लाइड करते हो, तो वो जो फ्लूइड इसके ऊपर से मूव होता है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लूइड फ्रिक्शन। मतलब आप फ्लूइड आपके और स्लाइड के बीच में आपका ये कांटेक्ट को, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है। यस और नो? डिड यू एग्री? डू यू एग्री दिस और नॉट? बोलो, करेक्ट है कि नहीं, बोलो। यस सर। Okay, okay, fine. Now, what is the main concept behind friction? Okay, so friction क्यों होता है? First of all, you should know that why you are getting the friction. Okay, so if you draw one object like this, okay, if I draw one object like this, and suppose this object is resting on the surface, okay, this object is resting on the surface. Now, what is basically happening in this surface, okay, there are some hills and valleys. Okay, if you see the surface, okay, the surfaces are like this little bit. Okay, जितना ज्यादा ये surface ऐसा रहेगा ना, okay, so it is called as hills and valleys. तो हम लोग को क्या करते हैं, ये जो हिल्स एंड वैलीज है, जैसा आपका कैरम बोर्ड रहेगा, ठीक है, तो कैरम बोर्ड पे सपोज ये स्ट्राइकर हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं कैरम बोर्ड में, आपने देखा रहेगा। तो पाउडर डालने के बाद क्या होगा, पाउडर डालने के बाद क्या होगा, देखो, फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस्ड। हाँ, ये जो हिल्स एंड वैलीज है, देखो ये जो है, ये जो हिल्स एंड वैलीज है, इसको क्या करते हैं हम लोग, भर देते हैं। ये जो है ना, समझो ये हिल्स एंड वैलीज है, ठीक है, तो फ्रिक्शन रिड्यूस क्यों हो रहा है, ये जो वैली है, इसके अंदर पाउडर घुस गया, देखो इसमें पाउडर चला गया, करेक्ट। तो ये जो वैली जहाँ पे मतलब गैप गैप ऐसा छोटा छोटा ये दिख रहा है, तो जब भी हम लोग पाउडर यूज करते तो ऑल दिस वैलीज आर गेटिंग covered and this surface, okay, it is becoming smooth like this. Yes or no? So due to that reason, that powder, okay, whenever you use that carom powder, it is filling all those valleys. Okay, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं इसमें, जब भी आप अगर कोई भी सरफेस देखते हो, तो इसमें सरफेस में क्या होता है, हिल्स एंड वैलीज। हिल्स एंड वैलीज मतलब ये छोटा वाला देखो, यहाँ पे जो मैंने दिखाया ये हिल हो गया, और ये जो बीच में मैंने गैप दिखाया, ओके, ये जो मैंने बनाया, ये गैप बनाया था, ये वैली था ऐसा। तो ये जो है, ये छोटा छोटा ऐसा वैल्यूज ये रहता है। अगर ये आपको नॉर्मल आई से नहीं दिखेगा, ये आपको किससे दिखता है, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हो, ओके, सो यू कैन सी दैट देर आर सम, ऐसा छोटा छोटा खड्डा खड्डा रहता है, देखना सरफेस पे, कोई भी इस पे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखेगा। So whenever you use that powder, carom powder, so it is filling all these valleys, okay, and your surface will become smooth. So that's why when you push the striker, then it will move smoothly on that carom board. Yes or no? Now, do you agree this or not? बोलो, ये क्लियर हो गया आपको? तो फ्रिक्शन क्यों, किसके वजह से आता है? फ्रिक्शन comes due to the roughness of the surface, and the roughness comes due to the hills and valleys which is present on the
surface. Okay. So now first thing you should always remember, now we are discussing about the laws of friction. Laws of friction. Okay. So frictional force follows some laws. Always it follows some laws. So now frictional force F, okay, it is always directly proportional to the normal reaction. So this is the first law of friction, that frictional force is always directly proportional to the normal reaction. Okay. तो अभी नॉर्मल रिएक्शन कैसे आता है बॉडी का, बताओ. नॉर्मल रिएक्शन बॉडी का कब आएगा, बोलो. सरफेस परपेंडिकुलर हाँ, वो तो रहेगा परपेंडिकुलर टू तब। द सरफेस, करेक्ट करेक्ट, एग्रीड. लेकिन कब आता है नॉर्मल रिएक्शन, जब बॉडी सरफेस से मूव करना या फिर मीन्स उससे दूर जा रहा हो तब. नहीं नहीं नहीं, बराबर है, सब एग्रीड है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कब आता है, ये मेरा बॉडी क्वेश्चन है. कांटेक्ट करे एक सरफेस के साथ. हाँ करेक्ट है, लेकिन बॉडी का वेट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, हाँ 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 सॉरी. रहना चाहिए सर. रहना हाँ. चाहिए ना. बॉडी का अगर वेट नहीं रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा क्या, नहीं. नहीं. आएगा. तो आपको अगर नॉर्मल रिएक्शन चाहिए तो बॉडी का समझो वेट है, समझो आप पकड़ लो बॉडी का वेट 10 न्यूटन है समझो, ठीक है. तो जितना ज्यादा वेट रहेगा उतना ज्यादा उसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा, बोलो. तो इसका वेट समझो 10 न्यूटन है, तो हम लोग दिखाएंगे कि इसका सेंटर से वेट एक्ट कर रहा है ऐसा 10 न्यूटन, हाँ या ना बोलो. सेंटर से वेट एक्ट कर रहा है, करेक्ट, बोलो. तो ये 10 सर ये न्यूटन. 10 न्यूटन ही नॉर्मल बन जाएगा ना. हाँ, तो जितना वेट है, जितना आपका वेट है, तो उतना ही नॉर्मल रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा, नॉर्मल रिएक्शन एन आएगा कि नहीं आएगा. नॉर्मल रिएक्शन मतलब Yes, नॉर्मल sir. मतलब क्या, नॉर्मल मीन्स व्हाट, परपेंडिकुलर टू दी परपेंडिकुलर. व्हाट, Surface. सरफेस, करेक्ट. ओके, तो जितना वेट रहेगा बॉडी का उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन आएगा, करेक्ट है कि नहीं. तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. ओके, तो हम लोग ने लिखा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. ओके, तो फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर ओके योर F इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन. ऐसा ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, म्यू इनटू एन, ये प्रोपोर्शनैलिटी Yes, का sir. साइन निकाल के. F is equals to mu into n. Okay, where mu is the constant of proportionality. Mu क्या है अपना, constant of proportionality, करेक्ट. तो constant of proportionality ये जो mu है, ओके, तो इसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, दिस mu is also called as, ये mu को क्या बोलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. म्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. आया समझ में. तो अभी ये आपका फर्स्ट लॉ है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन एंड ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इम्पेंडिंग मोशन. ओके, क्या बोल रहा हूं मैं, फ्रिक्शनल फोर्स is always directly proportional to the normal reaction and acts okay in the direction okay opposite okay opposite to the direction of impending motion. सिर्फ मोशन नहीं, impending motion. इंपेंडिंग मोशन मतलब क्या हो सकता है, इंपेंडिंग मोशन मतलब क्या हो सकता है, बोलो. आपके हिसाब से क्या होगा इंपेंडिंग, बोला हमने. इंपेंडिंग मोशन मतलब, इंपेंडिंग मतलब क्या, मोशन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट. मतलब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट स्टार्ट होने वाला है. आया समझ में. तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसको प्रोपोर्शनल रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको रहता है, नॉर्मल रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है. और कहां पे एक्ट करेगा, एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, करेक्ट.
सो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इम्पेंडिंग मोशन, मतलब अगर ये ब्लॉक को सपोज आपने एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे आपने एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स पी, ये ब्लॉक को पुश किया आपने फोर्स पी से, ठीक है, तो इसका ब्लॉक का मोशन कौन से डायरेक्शन में रहेगा जरा बताओ, ब्लॉक का मोशन कौन से डायरेक्शन में रहेगा? राइट हैंड साइड। यस, टूवर्ड्स राइट। तो ऐसा डॉटेड लाइन में दिखाओ कि मोशन विल बी टूवर्ड्स राइट। ओके, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स फिर कौन से डायरेक्शन में रहेगा बोलो, फ्रिक्शनल फोर्स फिर कौन से डायरेक्शन में रहेगा? Opposite. अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ Left. मोशन, मतलब हाँ लेफ्ट में, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट अलोंग दिस डायरेक्शन टू द लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पे। ओके, तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, इट इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ जो है, ओके, एफ इज इक्वल्स टू कितना है ये, एफ इज इक्वल्स टू म्यू Mu n. एन, आया समझ में? तो एफ इज इक्वल्स टू म्यू एन, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ओके, अभी इसमें भी अगर आपका फोर्स एफ जो है, देखो ये जो म्यू एन है, तो म्यू एन में भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक म्यू एस रहता है, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस मतलब क्या, म्यू एस Static. मतलब क्या, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, एक रहेगा म्यू एस इंटू एन, और एक रहेगा अगर बॉडी मोशन में है आपका, तो एफ इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, म्यू के इंटू एन रहेगा। अगर आपका बॉडी मोशन में है तो म्यू के क्या हो सकता है आपका, Kinetic. यस, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। आया समझ में? बोलो, ये क्लियर हो गया? तो अभी मेरे आपके हिसाब से ये मेरे को बताओ कि कौन सा ज्यादा रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा? आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा रहेगा? क्या सर? स्टैटिक फ्रिक्शन, पक्का? Yes sir. सर। Okay, so that is correct. So that is also one of the law of friction, okay, that your value of frictional force, okay, till it reaches the maximum value, okay, it is called as this limiting friction। okay, limiting friction मतलब क्या, ये म्यू एस, आप ये फोर्स पी अप्लाई कर रहे हो लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, बट इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो है एफ मैक्स, ओके, आपका मैक्सिमम फ्रिक्शनल जो फोर्स है एफ मैक्स, दैट इज इक्वल्स टू, वी विल राइट दैट इज म्यू एस इनटू एन। ओके, so this maximum frictional force till which it can hold the body, okay, जब तक ये बॉडी को होल्ड कर सकता है ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ मैक्स, ओके, तब तक ये होल्ड करेगा, मतलब इसको जाने नहीं दे रहा आगे। समझ रहे हो कि नहीं? ये जो बॉडी है ये फ्रिक्शन उसको रोक रहा है जाने से। ओके, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हाट, इट इज द maximum limiting friction till which it will hold the body in, it will resist the body to move। okay, so f max is what, that is mu s into n, so f max is also called as limiting friction। okay, f max is called as limiting friction। limiting friction मतलब क्या, limiting friction मतलब क्या, it is the, बोलो, Maximum friction. yes, it is the maximum frictional force। okay, it is the maximum frictional force। okay, so one more law of friction is what, that coefficient of static friction, okay, is always greater than coefficient of kinetic friction। देखो, जब तक होल्ड कर सकता करेगा तब तक वो मैक्सिमम रहेगा, एक बार बॉडी मोशन में आ गया ना, तो उसके बाद में क्या होता है, आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू कम हो जाता है फिर। ओके, सो इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ, ओके, ऑफ फ्रिक्शन, ओके, अगर ये जो ग्राफ है,
फ्रिक्शन का अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते, ठीक है, देखो so on this y axis we will show the frictional force. ओके, y एक्सिस पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, एंड x एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, अप्लाइड फोर्स। x एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, अप्लाइड force. Okay, so now what is happening, you know, whenever the body is resisting, आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना फ्रिक्शन भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एक सर्टन पॉइंट है, ओके, मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतना फ्रिक्शनल फोर्स भी रेजिस्ट कर रहा है, बॉडी को जाने से, आगे जाने से रोक रहा है। अंडरस्टूड? it is resisting the body, so till this point it is directly proportional, so till a certain point, okay, till the maximum frictional force it is reaching. Okay, if I draw a graph like this, so you can see that, you know, the more you apply force, the more is the frictional force. So this is your maximum frictional force, okay, this is your F max till which the body is going to resist. okay, तो यहां तक पहुंचने के बाद में फिर क्या होता है, मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस एक बार पार कर दिया, then it is the frictional force, it is going to drop like this. okay, and then once the body is in motion, so this is your, you know, fk, that is your fk मतलब क्या हो गया, कोएफिशिएंट, आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया ये, समझे कि नहीं? तो यहां तक जो हम लोग ने दिखाया, ओके, ये जो लाइन तक दिखाया मैंने, ओके, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, यहां तक कौन सा फ्रिक्शन रहेगा आपका, स्टैटिक रहेगा। यहां तक कौन सा फ्रिक्शन है बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और इसके आगे जो फ्रिक्शन आएगा वो कौन सा है, डायनामिक फ्रिक्शन बोलते हैं, डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। आ गया समझ में? ये ग्राफ समझा आपको? बोलो, ग्राफ समझा कि Yes, वापस? sir. तो ये जो देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा, ये सर जो ये मैंने लिखा, डायनेमिक फ्रिक्शन नहीं समझा, थोड़ा डाइन नेटवर्क था। ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ तक बॉडी को रोक रहा है फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो वैल्यू आया वो अपना एफ मैक्स हो गया। एक बार एफ मैक्स क्रॉस हो गया, बॉडी एक बार मोशन में आ गया, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा सा गिर जाता है। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स गिरने के बाद ये जो यहाँ से देखो एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये बॉडी अभी एक बार मोशन में आ गया, तो उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो ये जो है वो एफ के है। एफ के मतलब दिस इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब ये बॉडी अभी क्या हो गया, डायनामिक में आ गया। डायनामिक मतलब क्या हो गया, डायनामिक मतलब क्या, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, डायनामिक मतलब बॉडी इज इन मोशन। मोशन। ओके, तो यहाँ पे अभी डायनामिक फ्रिक्शन आ गया, तो मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ ये डायनामिक फ्रिक्शन है। आ गया समझ में? तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका डायनामिक फ्रिक्शन, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। आपका बॉडी जब भी समझो कोई भी बाइक रोड पे मूव हो रहा है, तो ये फ्रिक्शन तभी कांस्टेंट रहेगा, तभी वो ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा। ये फ्रिक्शन कब तक रेजिस्ट कर रहा है, जब तक देखो, जब तक बॉडी रेस्ट पे है, जब तक बॉडी रेस्ट पे है तब तक ये उसका मतलब रेजिस्टेंस देते 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 मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया। यहाँ तक पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, फिर वो फ्रिक्शन गिर जाता है और ये बॉडी आपका मोशन में आ गया इसके बाद में। आगे समझ में ये क्लियर हो गया? बोलो। तो इसलिए अगर आप ये ग्राफ देखते हो, वंस यू सी दिस ग्राफ, so you will understand that your coefficient of static friction, that is mu s, okay, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना mu s का, so mu s is always greater than mu k, yes or no? तो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरे को mu s का वैल्यू चाहिए, तो mu s will be what, mu s will be f max upon n, हाँ या ना बोलो, mu x will be f max upon n। और आपका म्यू के क्या रहेगा फिर, म्यू के विल बी एफ के अपॉन एन। एफ के ये वाला, हाँ या ना बोलो, करेक्ट? करेक्ट है कि नहीं बोलो? एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया और एफ मैक्स मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ मैक्स मतलब क्या, मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यस और नो? यस सर। ओके, तो एकदम क्लियर हो गया, बोलो। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का इसमें ही है। ले लिया स्क्रीनशॉट, बोलो। यस सर। ओके, यस सर। तो शुड आई इरेज इट नाउ? बोलो। यस सर। ओके, देखो, तो अभी आपको इसमें से एक और चीज क्या मालूम पड़ा, बोलो। इसमें से एक और चीज क्या मालूम पड़ा? मैंने ये फ्रिक्शन यहाँ पे क्यों बनाया, इधर सरफेस के साथ क्यों बनाया, बोलो। ये फ्रिक्शन मैंने यहाँ पे क्यों बनाया? ऊपर भी तो बना सकता था, इधर भी बना सकता था, यहाँ पे भी दिखा सकता था, इधर ही क्यों दिखाया? वो सर फ्लोर सरफेस पे लगता है। प्रोवाइड करेगा, हाँ, फ्लोर ही तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा ना सर। yes, correct, but it is one of the law of friction. It is one of the laws of friction, third law. तो थर्ड लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि द फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, इज ऑलवेज एक्टिंग टेंजेंशियल टू द सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा एक्ट करेगा, कैसा एक्ट करता है? टेंजेंशियल। टेंजेंशियली टू सर। ओके, तो इट, देखो अभी मैं आपको फर्स्ट लॉ बता रहा हूँ। फर्स्ट लॉ क्या है? द फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, is always acting tangential to the contact surface and acts in the direction opposite to the direction of impending motion. This is the first law, okay, that frictional force always acts tangential to the surface, okay, frictional force always acts tangential to the surface, okay, to the surface, always as tangential to the contact surface and opposite to the direction of impending motion, and opposite to the direction of impending motion, okay. तो ये tangential to the surface एक्ट करता है, और कैसे एक्ट करता है? opposite to the direction of impending motion, okay. तो ये इसका फर्स्ट लॉ ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट लॉ, ओके, इसको हम लोग नंबर 1 देते हैं, ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या है? दैट द वैल्यू ऑफ एफ इंक्रीजेस as applied disturbing force increases till it reaches the maximum value of F max, okay. At this limiting stage the body is on the verge of motion. So this is your second law. Second law क्या बोल रहा है? The value of frictional force increases, value of frictional force, okay, this value of frictional force will increase, okay, जो मैंने ग्राफ में बताया था, okay, value of frictional force increases as applied disturbing force increases till it reaches the maximum value. disturbing force कौन सा? ये P, मतलब ये P जब तक maximum value पहुंचेगा तो उसके साथ साथ कौन बढ़ेगा? F भी बढ़ेगा, okay, till it reaches the maximum limiting friction, okay, till the body is on the verge of motion, okay. तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया आपका, तो ये सेकंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एफ मैक्स टू द नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांस्टेंट, ओके। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? थर्ड लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ दिस वन एफ मैक्स, okay, ratio of f max to the n, okay, normal reaction, okay, is a constant. तो is a constant मतलब क्या? ये म्यू एस रहेगा, हाँ या ना बोलो, ओके। तो ये थर्ड लॉ हो गया आपका। थर्ड लॉ क्या बोल रहे हैं? द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, एफ मैक्स and the normal reaction n is a constant and it is referred as a coefficient of static friction, and it is referred as coefficient of static friction. ये म्यू एस को क्या बोलते हैं हम लोग? जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया, म्यू एस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यस और नो? समझा ये? यस सर। तो सर ये जब आपका तक हाँ बोलो। सर जब तक एफ मैक्स रहेगा तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी ना? नहीं नहीं नहीं, तब तक मूव नहीं करेगा, मतलब वो लास्ट फोर से जब तक वो होल्ड कर रहा है बॉडी को, एक बार एफ मैक्स क्रॉस हो गया तो बॉडी फिर मोशन में आ जाएगा, समझे कि नहीं? ओके सर। यस सर। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट लॉ जो है
क्या बोल रहे हैं, फॉर द बॉडीज इन मोशन, ओके, for the bodies in motion frictional force developed Fk is less than the limiting frictional force F max। क्या बोल रहे हैं, जब ये बॉडीज मोशन में है, ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्थ लॉ हो गया, ठीक है। ये वाला जो अभी हम लोग ने स्टडी किया, ओके, दिस वाज द थर्ड लॉ, ओके, F max अपॉन n इज इक्वल्स टू म्यू एस, ये जो था ये अपना थर्ड लॉ था। फोर्थ लॉ क्या बोल रहा है कि आपका जो ये है, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड, ओके, तो फॉर बॉडीज इन मोशन फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड इज एफ के। मैंने वो ग्राफ में बताया था ना, एफ के और एफ मैक्स बताया था, याद है अभी आपके ग्राफ में बताया था एफ मैक्स और एफ के। तो उसमें Yes, sir. हाँ, उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, ओके, दैट इज एफ मैक्स, ओके, एफ मैक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ के, ऐसा बोल रहे हैं। तो दिस इज योर फोर्थ लॉ, ओके। फोर्थ लॉ क्या बोल रहा है, फॉर द बॉडीज इन मोशन द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड एफ के, ओके, इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एफ मैक्स, ओके। तो एफ के इज लेस देन एफ मैक्स, ये आपको बोल दिया क्वेश्चन में, सॉरी ये लॉ में। द रेशियो ऑफ एफ के एंड नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांस्टेंट and is referred as kinetic friction। क्या बोल रहे हैं, ये वाला, the ratio of Fk, ये वाला, ये देखो, the ratio of Fk upon n, okay, ratio of Fk to the normal reaction is called as mu k, that is coefficient of kinetic friction। तो ये वाला आपका फोर्थ लॉ है, समझा ये। सर इसमें सेकेंड लॉ कौन सा है? सेकेंड लॉ क्या था आपका, कि जो बॉडी है, ओके, whenever you are applying the force, this force P, okay, so second law is the value of frictional force F increases, ये वाला, the value of frictional force F increases as the applied disturbing force increases। मतलब क्या है, ये फ्रिक्शनल फोर्स F तब तक इंक्रीज होगा जब तक, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब तक इट इज whenever we are applying the force, जो अप्लाइड फोर्स मैंने ग्राफ में बताया था ना, एक नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पे अप्लाइड फोर्स बताया था, बराबर है। तो यस सर। हाँ, तो फ्रिक्शनल फोर्स कब तक बढ़ेगा, जब तक अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा। ये एफ क्या है अपना, ये अपना फ्रिक्शनल फोर्स है, दिस एफ इज अवर फ्रिक्शनल फोर्स, ये एफ अपना फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स तभी तक बढ़ेगा जब तक अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, करेक्ट। तो क्या बोल रहे हैं सेकेंड लॉ में, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एफ increases, okay, as the applied disturbing force increases till it reaches the maximum limiting value, till it reaches the maximum limiting value F max, okay। At this limiting stage the body is on the verge of motion। एक्चुअली ये जो हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, ये किसके रिलेटेड है, ये जो मैंने आपको ग्राफ बताया था ना, ये ग्राफ बताया था, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्या बोला था, अपना ये वाई एक्सिस पे क्या था, बोलो, फ्रिक्शनल फोर्स था वाई एक्सिस पे, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे क्या था, अप्लाइड फोर्स था, अप्लाइड फोर्स था, बराबर है, एक्स एक्सिस पे। तो हम लोग ने डायग्राम ऐसा बनाया था, देखो, इधर से ये ऐसा जा रहा है, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा जाएगा, यस और नो। तो मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे जो है ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो गया आपका, करेक्ट। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका अप्लाइड फोर्स, मतलब ये वाला जो फोर्स है, ये तब तक, ये फ्रिक्शनल फोर्स तब तक बढ़ेगा जब तक अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, मतलब ये जितना बढ़ेगा इतना वाई बढ़ेगा, और यहाँ पे एफ मैक्स आएगा, देखो ये बोल रहा है ये सेकेंड लॉ में, समझा, समझा ये। यस अप्लाइड सर। फोर्स एक्स डायरेक्शन में, तो ये जितना बढ़ेगा ना अप्लाइड फोर्स एक्स जितना बढ़ेगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक ये एफ मैक्स पे नहीं पहुंचता है तब तक, अंडरस्टूड, until Yes, sir. it reaches the f max value, okay। So this is your second law,
एंड लास्ट वाला फिफ्थ लॉ क्या है इसमें? द फ्रिक्शनल फोर्स F generated between two rubbing surfaces is independent of the area of contact. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली में किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो, एक्चुअली में किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है. नॉर्मल रिएक्शन किसके वजह से आता है? नॉर्मल रिएक्शन वेट के वजह से. तो अगर आपने देखा रहेगा, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल याद रखो. टग ऑफ वॉर का गेम मालूम है आपको? जो Yes, रस्सी sir. खींचते हैं Yes, टग ऑफ sir. वॉर. हाँ, तो वो गेम में कभी भी नोटिस करो, एक वेट का क्राइटेरिया रहता है. टग ऑफ वॉर में वेट का क्राइटेरिया, आप अगर एंट्री करोगे तो वो टीम सामने वाला बोलेगा कि पूरे टीम का जो वेट है ना वो 560 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. ये आप कभी भी नोटिस करना, टग ऑफ वॉर में वेट एक फैक्टर है. वेट इज वन ऑफ द फैक्टर. ओके, वेट एक फैक्टर है. रूल्स जब भी आप पढ़ोगे टग ऑफ वॉर का, कभी भी आप पार्टिसिपेट करो वो गेम में, तो उसमें आपको बोलेंगे कि आपका जो टीम है उसका टोटल वेट 560 के ऊपर, ओके, या 580 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. नहीं तो क्या होता है, टग ऑफ वॉर जो गेम है उसमें आप सबसे हैवीएस्ट पर्सन को रख दिया, ओके, तो जितना ज्यादा हैवी पर्सन रहेगा उसका फ्रिक्शन उतना ज्यादा रहेगा. बराबर है कि नहीं बोलो? तो सामने वाले टीम का जीतने का पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगा ना. फिर अगर आप हैवी पर्सन्स को लिया टग ऑफ वॉर में, तो जितना हैवी है उसका फ्रिक्शन भी उतना ज्यादा रहेगा ग्राउंड के साथ में, तो ऑब्वियसली आपका जीतने का पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाता है फिर. यस और नो? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. जिसका वेट जितना कम है ना उसका बॉडी का फ्रिक्शन भी उतना कम रहता है. समझे? और जिसका वेट ज्यादा रहता है उसका फ्रिक्शन भी ज्यादा रहता है. ओके, सर दैट मीन्स फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा ना? हाँ, मास मतलब मास किसकी वजह से आता है? मास अपना हाँ मीन्स वेट. वेट. करेक्ट. जिसका मास जितना ज्यादा है ना उसका फ्रिक्शन उतना ज्यादा रहेगा. सिंपल. इसलिए अगर आप देखोगे डांस में भी, जो भी डांस करते हैं, मून वॉक वगैरह अगर आपने देखा रहेगा जो करते रहेंगे, बराबर है, तो उसमें देखना जो डांसर रहता है वो एकदम पतला रहता है कभी भी, मतलब लाइट. जो जिसका वेट अगर ज्यादा है ना उसको इजीली मून वॉक करने को नहीं जमेगा. डू यू एग्री दिस और नॉट? बोलो. आपने देखा Yes, sir. रहेगा माइकल जैक्सन को देखा रहेगा जब वो मून वॉक करते थे स्टेज पे, करेक्ट, तो उनका वेट कैसा था? एकदम पतले से रहते थे ना. ही वॉज वेरी थिन बाय हिज बॉडी टाइप. अगर बॉडी टाइप बहुत ज्यादा हैवी है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू डू दैट मून वॉक इन दैट डांस ऑल्सो. ओके, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है ना, तो फ्रिक्शन ज्यादा है तो मून वॉक कैसे होगा फिर? अग्रीड और नॉट? देखो मैं आपको Yes, sir. प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ. कोई भी डांसर भी जो भी रहता है ना उसका वेट जितना कम रहेगा ना, दैट पर्सन विल बी एबल टू डांस मोर इजीली. ओके, व्हाई? बिकॉज दिस फ्रिक्शन इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर. okay, because frictional force is depending on the normal reaction, it is depending on the weight of the body. तो जितना ज्यादा बॉडी का वेट है उसका फ्रिक्शन उतना ज्यादा रहेगा, और फ्रिक्शन जितना ज्यादा रहेगा तो उतना उसका बॉडी इजीली ग्राउंड पे मूव नहीं होगा. अंडरस्टूड? सो दैट इज द मेन रीजन. ओके, बॉडी का एजिलिटी कितना भी रहने दो उससे फर्क नहीं पड़ता है. ग्राउंड फ्रिक्शन अगर ज्यादा रहेगा तो आपका फीट इजीली मूव नहीं होगा ग्राउंड पे. ओके, क्लियर? बोलो. Yes, sir. Okay, so we'll erase this part now. We have learned what are the laws of friction. So now it is very clear to you that frictional force is directly proportional to the normal reaction, and it always acts tangential to the surface and acts in the direction opposite to the direction of impending motion. Okay, then your coefficient of static friction mu s is always greater than mu k. Okay, that is your F max is always greater than Fk. Okay, then ratio of F max upon n is called as mu s. Okay, ratio of Fk upon n is your mu k. Correct?
ओके, सो वी हैव रिवाइज्ड ऑल दी लॉज. ठीक है, इरेज कर देते चलो इसको. नाउ वी विल लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट इन दिस. तो फ्रिक्शन इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है? बोलो, इजी है कि हार्ड है? ओके, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें. सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो भी डायरेक्शन में मोशन रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. सिंपल. और कैसा एक्ट करता है? टेंजेंशियल टू द सरफेस एक्ट करता है. फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेट ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है. जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन. एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. सिंपल. ओके ओके, चलो. Now, next thing which we will learn, okay, that is called as angle of friction. So, what is angle of friction? Okay. So, angle of friction is what? It is the angle, okay, it is the angle made by the resultant made by the resultant, okay, made by the resultant of limiting frictional force of limiting frictional force, okay, limiting frictional force F max and the normal reaction N and the normal reaction N, okay, with the normal reaction, with the normal reaction, normal reaction. ठीक है. So this is the statement of angle of friction. Okay, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का नोटेशन क्या है? फाई है. ओके, तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का स्टेटमेंट वगैरह आपको ओरल एग्जाम में, ये जो भी हम लोग ने लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा, ये आपको मैकेनिक्स के ओरल्स में पूछेंगे. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉज ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सब आपके ओरल के क्वेश्चंस है मैकेनिक्स का जो ओरल एग्जाम रहेगा. ओके, so please study it properly and it is very easy also. There is nothing difficult in it. Now angle of friction is what? देखो, now if there is a body like this, okay, it is resting on a surface. This body is resting on this surface like this, correct? So now suppose weight of the body is given as W. Okay, so as I have told you that weight will always act from the center of the body. Okay, so we will show the weight like this. Yes or no? So due to weight, now what is acting on the body? Bolo. Due to weight, what is acting? Normal. Normal Normal. reaction. Normal reaction is acting. Okay, so I will show the normal reaction as N. Okay, now if the body, we are applying a force P along this direction, we are pulling this body along this direction with force P. So your frictional force will be in the opposite direction and acting tangential to the surface. Yes or no? तो tangential है, Yes, इसलिए sir. मैंने सरफेस को ऐसा बनाया, चिपका के बनाया. Yes or no? तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन है, दिख रहा है आपको? ये हो गया अपना F Yes, max. sir. ओके, तो अभी देखो ये N हो गया और ये F max हो गया, तो दोनों फोर्स एक इधर आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो ये दोनों का बीच में से कुछ रिजल्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो, यहाँ से दोनों के बीच में से रिजल्टेंट फोर्स रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसा, हाँ या ना? बोलो. तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे आएगा? रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो. करेक्ट. तो Yes, ये sir. आपका रिजल्टेंट फोर्स आर रहेगा. ठीक है,
तो अभी क्या बोल रहे, देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज व्हाट, इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, एंगल किसके साथ बना रहा है, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एफ मैक्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। किसका रिजल्टेंट है, एफ मैक्स का और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है। तो दिस इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट। ओके, रिजल्टेंट किसका, ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ये एफ मैक्स का, एंड द नॉर्मल रिएक्शन, ये एन का। तो ये दोनों का रिजल्टेंट जो है वो आर है। ओके, विद द नॉर्मल रिएक्शन। एंगल किसके साथ बना रहा है, एंगल किसके साथ बना रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के साथ बना रहा है। मतलब अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज व्हाट, इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट। एंगल कौन बना रहा है, देखो सिंपल है, ये जो है, ओके, स्टेटमेंट आप समझो, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, किसके साथ, एंगल किसके साथ बना रहा है, देखो ब्लू लाइन से मैंने मार्क किया है, फ्रिक्शन, ये देखो एंगल किसके साथ बना रहा है, नॉर्मल के साथ। नॉर्मल रिएक्शन। सो इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, ओके, विद द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब ये जो रिजल्टेंट है, और ये रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट एफ मैक्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है। आया समझ में। तो ये जो स्टेटमेंट है आगे का, कि इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट किसका, रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का, ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एफ मैक्स एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एफ मैक्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो रिजल्टेंट किसका, ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ मैक्स का है एंड नॉर्मल रिएक्शन एन का है। अंडरस्टूड। तो इसलिए ये जो आर का वैल्यू रहेगा, तो ये आर क्या रहेगा, दैट इज योर स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, आपका एफ मैक्स का स्क्वायर रहेगा, करेक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ एफ मैक्स का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, करेक्ट है कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ योर एफ मैक्स के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो, म्यू एस इंटू म्यू एन, एन का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, हाँ या ना, बोलो, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम लोग एंगल देखते हैं, देखो अगर मेरे को एंगल चाहिए, ये फाई समझो, यहाँ पे ये tan फाई, ठीक है। तो अभी आपको मालूम है, देखो इसमें, ये देखो इसमें ये वाला जो पार्ट था वो n है अपना, करेक्ट, ये वाला अपना n है, और अपना हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है इस तरफ, वो अपना एफ मैक्स है, इधर अपना एफ मैक्स आ रहा है एक्स डायरेक्शन में, बराबर है। तो ये n हो गया, और ये एफ मैक्स जो ऊपर है वो मैंने यहाँ पे दिखाया एफ मैक्स। तो अब ये tan फाई क्या रहेगा, tan फाई क्या रहेगा, म्यू, बोलो, ऑपोजिट साइड, दैट इज ऑपोजिट साइड इज एफ मैक्स ऑन n, हाँ या ना, बोलो। तो यहाँ पे फिर अपन क्या लिख सकते हैं, दैट इज tan फाई इज इक्वल्स टू, एफ मैक्स अपना क्या है, म्यू एस एन। म्यू एस एन अपॉन एन, हाँ या ना, बोलो, करेक्ट है। यस सर। तो ये n और n देखो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बच रहा है फिर, देयरफॉर फाइनली वी आर गेटिंग व्हाट, म्यू एस। tan फाई इज इक्वल्स टू म्यू एस, हाँ या ना, बोलो, ओके, एकदम क्लियर हो गया, बोलो। यस सर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू एस, इधर से ये इस तरफ ले लिया, ओके। So this is one of the equation which we are getting. So you can take the screenshot of this. So we have completed what is the angle of friction. Okay. Is it clear? Bolo.
बोलो। Yes, sir. इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसको अपन बोलते हैं कोन फ्रिक्शन, याद रखो। तो ये कोन फ्रिक्शन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? कोन फ्रिक्शन क्या है? देखो ये जो आर है ना रिजल्टेंट, ठीक है, अगर ये रिजल्टेंट को हम लोग ने पकड़ के घुमाया तो यहाँ पे ये एरो जो है वो ऐसा आएगा, पूरा 360 डिग्री घुमाया समझो पकड़ के। ये रिजल्टेंट जो है इसको पकड़ के आपने ऐसा घुमाया, सो यू कैन सी दैट हियर इट इज जनरेटिंग अ कोन लाइक दिस। यस और नो? डू यू एग्री दिस और नॉट? So Yes, sir. if I hold that resultant and if I rotate it along 360 degree, okay, if I rotate it along this 360 degree, okay, if I rotate this resultant along 360 degree, so it is going to generate a cone like this. Okay, so that type of friction is called as cone friction. Now, what is the best example for cone friction? कोन फ्रिक्शन कहाँ पे आपने देखा है कि वो आता है लेकिन आपको मालूम नहीं है? बोलो। Merry-go-round. नहीं, मैरी गो राउंड नहीं। कोन फ्रिक्शन जो है ना, ये आपको पावर स्क्रू में दिखेगा। कोन फ्रिक्शन कहाँ पे दिखता है? पावर स्क्रू। पावर स्क्रू जैसा कौन सा है मालूम है? जो स्क्रू जैक आपने देखा है? स्क्रू जैक क्या रहता है? देखा कि नहीं स्क्रू जैक? अरे जो आपका गाड़ी का ये रहता है ना स्टेपनी, टायर पंक्चर हो गया तो आपने ये देखा रहेगा ना, एक ऐसा व्हील में एक हैंडल रहता है, उसको ऐसा पकड़ के घुमाते तो गाड़ी ऊपर जाता है। अरे आपने कार Yes, sir. कार का टायर कभी रिप्लेस करते हुए नहीं देखा है क्या? देखा सर। देखा है ना? तो उसमें जो हाँ सर। हाँ उसमें जो लिफ्ट करता है ना गाड़ी को, उसको स्क्रू जैक बोलते हैं। उसको मतलब पावर जैक या पावर स्क्रू में आता है, वो स्क्रू जैक बोलते हैं उसको, जो गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए यूज होता है। तो वहां पे एक हैंडल रहता है देखो, जिससे हम लोग उसको रोटेट करेंगे ना तो कैसा ऊपर ऊपर की तरफ मूव होता है वो गाड़ी, बराबर है कि नहीं? तो वहां पे कैसा ही ऐसा कोन जैसा जनरेट होता है व्हेनेवर वी आर लिफ्टिंग अप द कार। ओके, सो देयर दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर कोन फ्रिक्शन। देखो वहां पे क्या होता है, एक बार गाड़ी ऊपर चला गया तो वापस नीचे आ जाता है क्या? नहीं ना, नीचे नहीं आता ना, ऊपर ही रहता है ना वो। अरे बराबर है कि नहीं? बोलो, समझ में Yes, आया क्या sir. बोल रहा हूँ? Yes, sir. आपने एक बार स्क्रू जैक से गोल गोल घुमाया, उसको रोटेट किया, तो हैंडल को रोटेट करने के बाद गाड़ी ऊपर आ गया आपका। एक बार गाड़ी ऊपर आने के बाद में नीचे आता है क्या वापस? नहीं ना। No. तो इसका No. हाँ, तो इसका मतलब कुछ तो है, कोई एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो वो गाड़ी को ऊपर होल्ड करके रख रहा है। यस और नो? सो दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज द कोन फ्रिक्शन। अंडरस्टूड? आपको मैंने बेस्ट एग्जांपल दे दिया कोन फ्रिक्शन का। यू शुड रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ स्क्रू जैक। ओके, अरे बोलो कुछ, यस नो कुछ तो बोलो, मालूम तो पड़ेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, समझा। Yes, sir. समझा। ओके चलो। यस सर। ठीक है चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन क्लोज करते। टाइम अप, इट्स ऑलरेडी टाइम अप। विल क्लोज द लेक्चर नाउ। ओके।